Acha chalo. Let me just tell you one thing that today's question is very special as the question is asked by our son Parth Tanda and he wanted to ask you one thing कि he said कि मम्मा आप मेरी तरफ से आज पापा को एक question पूछो. So I hope you are able to answer what he has to ask you. The question that he wants to know is what is your biggest learning after that you've read so many books and taken so many sessions across India, traveled a lot throughout the country. So he wants to know that what is your biggest learning from all these Indian epics? तो पार्थ को तो मैं थैंक यू अलग से बोल दूंगा, ठीक है? सो मूविंग अहेड, so so there are many learnings, to be honest. There are many learnings that come to our mind, and I think every day whenever we read books, whenever we read any epic or Veda or Purana, I think so we obviously keep on evolving. But one learning that I genuinely keep in mind, and I think I've learned a lot how to handle life also, which gives me a lot of clarity in my mind, which gives me a lot of belief, which keeps me motivated, which keeps me, pushing more towards what I want to do. I am going to share that particular learning with you, and I genuinely hope that a lot of people will find the insight that I found in that, because it keeps you very balanced, it keeps you very calm and composed during my turbulence, the phase that we go through or anything that goes wrong in my life and all. And if you also ask me, what is that one learning that probably I would also like our children to learn and inculcate and implement from Indian epics, I think this would be Yeah. that learning that I'm going to share with you. So And Indian I think epics, that would be a question from many parents. They would like to know ki, yes. what are the learnings that their children should take up from these Correct, epics. correct. And another thing is that yes, so the learning that I'm going to share is not only applicable for children, but it's for every human being, I believe, that are there on this planet. So let's very quickly come back to come to the story. So over there, in Indian epic ना एक समुद्र मंथन हुआ था, correct? तो समुद्र मंथन में क्या होता है कि there was the asuras and the devas, okay? So they were step brothers, and they always constantly used to fight with each other. ओके, तो कभी देवास स्ट्रांग होते, कभी असुरा स्ट्रांग होते, कभी देवास जीते, कभी असुरा जीते, तो उनमें हमेशा टसल चलता रहता था. बट एक बार टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक बार इंद्र भगवान जो है उनको ना दुर्वासा से एक क्या कहते हैं कर्स मिलता है, या फिर उनको उनका इंद्र देवता जो है जो उनको इंसल्ट कर देते हैं, कुछ होता है, तो फिर उनको कहा जाता है कि अभी आपकी जो पावर है थोड़ा डाइल्यूट होना शुरू हो जाएंगे. तो जिसके से असुरस जो है दे वर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, रियली स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर डे बाय डे दे वर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर. तो अब ये लोग जो है, जो देवी देवता होते हैं, ये लोग जाते हैं ट्रिनिटी के पास, और वहां पे उनको कहा जाता है कि आपको एक मंथन करना होगा, और उस मंथन में कई सारे आर्टिकल्स निकलेंगे, परंतु अंत में जो अमृत निकलेगा, जो वो अमृत पी लेगा वो अमर हो जाएगा. परंतु उस मंथन को करने के लिए देवास को जो है उनको असुरास की भी मदद लगेगी, क्योंकि वो जो मंथन था वो कुछ कुछ दिनों का नहीं था, वो जो मंथन था वो 1000 वर्ष का था, और यू नीडेड रियली स्ट्रॉन्ग मैन टू डू दैट मंथन. तो फिर क्विकली उसके वो लोग जो देवास होते हैं असुरास के पास जाते हैं और कहते हैं वील स्प्लिट इट, एंड हम लोग तो अमर हो जाएंगे, फाइट करने की जरूरत नहीं, एंड ऑल दोस थिंग्स. तो वो हो जाता है. अब मंदरा पर्वत को लिया जाता है, शिव जी के पास जाते हैं, वासुकी स्नेक को लिया जाता है उसको चर्न करने के लिए. सो विष्णु के भगवान विष्णु अपना अवतार लेके आते हैं टर्टल, और उसका बेस बन जाते हैं. माउथ की तरफ है असुरास होते हैं, टेल की तरफ फिर देवास होते हैं, और वो लोग फिर चर्निंग करते हैं. Now, because the churning has to happen in a very systematic manner, because both cannot pull वासुकी स्नेक together, वरना उनको बहुत पेन Yes. होगा, तो और वो नॉट बन जाएगा बेसिकली. तो इसमें क्या होता था कि जैसे असुरास पुल करते हैं वासुकी को, तो देवास को थोड़ा उनको रिलीज करना पड़ता है, फिर जैसे देवास खींचते हैं तो फिर असुरास को पुल करना पड़ता है. अब उसमें से कई सारे आर्टिकल्स निकलते हैं, और वो एम्बिगली डिसाइड हो जाता है कौन लेकर जाएगा. सो इट कैन बी, लेट्स से कोई देवता ले जाएंगे, या फिर कोई बाली महाराज को जाएगा, कोई शुक्राचार्य गुरु ले जाएंगे को, तो कुछ ना कुछ वो लोग डिसाइड कर लेते हैं किसको देना है. तो जो पूरा मंथन है ना वो 3 बार रुकता है. एक अंत में जब अमृत निकलता है तब रुकता है. सो नॉट गोइंग इनटू द सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ इट, बिकॉज आई जस्ट टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर लर्निंग. सो उसमें से फिर क्या कहते हैं लक्ष्मी निकलती है. अब जैसे लक्ष्मी निकलती है तो असुरास को भी चाहिए, देवास को भी चाहिए, तो जैसे टसल बिटवीन देम कि कौन लक्ष्मी को कौन लेकर जाएगा. तो अब वहां पर जो होता है कि
फिर उनका स्वयंवर रचा जाता है लक्ष्मी माता का, और लक्ष्मी माता जो है फिर वो विष्णु से विवाह करती है, और विष्णु देवता और लक्ष्मी माता वहां से चले जाते हैं। अब उसमें वासुकी स्नेक जो ना, उनको इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है, क्योंकि कितने टाइम तक चर्न करते जा रहे हैं, हजारों साल तक चर्न करते जा रहे हैं। तो ही गेट्स रियली आई थिंक इज एट अ बिट इन पेन। तो वो जितना भी उनके मुंह माउथ में जो पॉइजन होता है उसको स्प्रेड कर देते हैं, और वो जो पॉइजन है वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है सब जगह। अब वहां पर जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी सब जरा कोई मरना शुरू करते हैं, कोई इंजर हो जाते हैं, कोई पेन में होते हैं। अब ये लोग सब घबरा जाते हैं कि अभी हम लोग करें क्या। तो ये लोग सब जाते हैं महादेव के पास, और महादेव को कहते हैं कि प्रभु आपका वासुकी, अभी आप ही देखिए क्या करना है। तो वहां पर जो है शिव जी जाते हैं, और वो जो पूरा जहर है उसको पी लेते हैं। जैसे वो पूरा जहर पीते तो माँ पार्वती का अवतार माँ तारा के रूप में आती है, और उनका जो पूरा का पूरा जो जहर उनके कंठ में उसको अटका देती है, तो जहाँ पे उन्हें नीलकंठ का नाम मिलता है। तो आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ दिस। अब बाद में फिर चर्निंग शुरू की जाती है, बिकॉज अभी वो जो जहर है दैट इज ऑल्सो बीन टेकन केयर ऑफ। ओके, अब जो पूरा का फिर वापस चर्निंग की जाती है, और उसमें से एंड में अमृत निकलता है। अब जैसे अमृत निकलता है, तो जो असुरास होते हैं वो लोग को अमृत चाहिए होता है, तो लोग लेके चले जाते हैं। फिर विष्णु भगवान मोहिनी के अवतार में आते हैं, एंड देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी दैट टेक्स प्लेस, एंड फाइनली देन विष्णु भगवान जो है मोहिनी के रूप में जो आते हैं देवता को दे देते हैं अमृत, और देवता अमर हो जाते हैं। करेक्ट। अभी इसको हम लोग ना थोड़ा एक कंबाइन करके देखते हैं, इसमें लर्निंग क्या होती है। तो लेट्स से द देवतास रिप्रेजेंट गुड पॉजिटिव थॉट्स, द असुरास रिप्रेजेंट नेगेटिव थॉट्स, अब माइंड में है वो चर्निंग चलती है, सो देयर थॉट्स ऑफ, देयर इज अ चर्निंग ऑफ द थॉट्स दैट टेक्स प्लेस। तो कभी हमें पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, कभी हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारे मन में भी वो मंथन चलता रहता है। अब हमें अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेना पड़ता है। कभी वो जो डिसीजन राइट हो सकता है, कभी रॉन्ग हो सकता है। करेक्ट। तो ये जो है वो हमारे मन के अंदर जो मंथन है, ये उसका नतीजा, मतलब एक मेटाफर टर्म में आता है। अब इसमें लर्निंग, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई ऑलवेज टेक फ्रॉम दिस एंटायर समुद्र मंथन इज कि अमृत जो है ना, वो जहर के बाद ही मिलता है। पहले वो जहर को पीना पड़ता है, वो जहर को एडजस्ट करना पड़ता है, वो जहर को किधर ना किधर कंठ में अटकाना पड़ता है। अब शिव जी जो है, महादेव है, उन्होंने भी माँ तारा ने भी जो है उनके कंठ में उस जहर को अटकाया। अब वहां पर क्यों अटकाया, नाउ दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, दिस प्योरली माय अंडरस्टैंडिंग, कि वो जो जहर है उनको ऐसी जगह पर अटकाया कि वो जो जहर ना उनके हृदय तक जा पाया, और क्योंकि उनके हृदय में नहीं गया तो उनके मन में बुरी बातें नहीं आई असुरा या देवा के बारे, इसके लिए उनकी जुबान से भी कभी बुरी बातें नहीं है किसी के लिए। और महादेव जो है भोलेनाथ ही रहे, आगे जाकर भी कभी कोई देवता ने या कभी कोई असुर ने उनसे कभी भी कोई क्या कहते हैं ब्लेसिंग मांगी कुछ, तो वो भी उन्होंने दे दी, क्योंकि उनके ना हृदय में ना मन में किधर भी नेगेटिविटी नहीं थी। तो हमारे भी जब भी लाइफ में स्ट्रगल होता है, व्हेनेवर थिंग्स गो रॉन्ग एंड ऑल, आई ट्राई टू कीप दिस इन माइंड कि बेटा ये जो है ना, ये तेरा जहर का फेज है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख, डोंट फील बैड अबाउट इट, एंड डोंट फील थिंक अबाउट बैड अबाउट इट, एंड वट एवर हैपेंस तो उसको जुबान पर तो कभी भी नहीं लाना, क्योंकि वक्त कभी बदलता है कोई नहीं जानता है। और मैं हमेशा अपने आप को एक ही चीज कहता हूँ कि ये जहर का फेज जाने दे, मोहिनी के अवतार में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आएगी तेरे सामने, सो ओवर देयर जस्ट ट्राई टू होल्ड ऑन टू इट, डोंट गेट कैरिड अवे विद द इनिशियल सक्सेस, फेम, ग्लोरी, वॉट एवर यू गेट, क्योंकि अमृत उसके बाद ही आने वाला है। तो कैसे भी पहले जहर को हैंडल करो, इनिशियल सक्सेस को हैंडल करो, सक्सेस जो है वो सर में नहीं चढ़नी चाहिए, and then finally then over there you can move ahead, and then that is where the real amrit comes into the picture, that is where the greatness comes into the picture. So a lot of successful people, great the people are legend, they do not allow success to enter their head, they do not allow that. So they're very they're very careful about the time they're how they're spending their time during struggle. तो पार्थ को भी हो, क्यारा हो, पना हो, या प्रीना हो, या दक्ष हो, या जो भी हमारे जितने हमारे नेफ्यू नीस है, मैं सबको मतलब इफ यू ऑनेस्टली आस्क मी, मैं यही कहूंगा कि व्हेन द स्ट्रगल इज गोइंग ऑन ना, प्लीज रिमेंबर, इसको कैसे भी मैनेज कर लो, डोंट गिव अप, डू नॉट अलाउ दैट पॉइजन to enter your heart or mind, and somehow manage that poison, and after that only you will get that amrit. तो स्ट्रगलिंग फेज में मुझे बड़ा मोटिवेटिंग लगता है कि एंड आई ऑलवेज कीप टेलिंग माई सेल्फ फोकस 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 फोकस, ये जहर है, इसके बाद ही अमृत आएगा, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम पीपल दे वांट टू बी सक्सेसफुल, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट वो स्ट्रगल आएगा ही आएगा, बिकॉज द रियल सक्सेस इज ऑलवेज ऑन द अदर साइड ऑफ द फेयर।
So you have to overcome the fear, you have to win the fear. And this story is genuinely, that is there, in my mind. And I always go through the story literally every day I go through the story, just reminding myself, couple of things. That first, if it's a struggling phase, don't give up. Second, if the things are going good, it could be probably a mohini, so don't get, Don't let that get into your head also. yes. All right. I hope Parth likes this answer. Hmm. And thank you so much, Rishi.